Hello, welcome you all. Today we will start with Unit 1, Class 9th, and the name of the unit is Introduction to IT and ITES Industry. So, when we talk about IT stands for Information Technology. There are various terms that comes under information technology like communication, servers, internet, network support, applications, software, security, database and hardware. So all these terms comes under information technology. There are various industries like KPO, BPOs, all the business sector, even all the areas are using the services of information technology. So there are various terms that you have to know that ICT stands for Information and Communication Technology. Full form of ICT is Information and Communication Technology. IT stands for Information Technology. ITES stands for Information Technology Enabled Services. So what is information technology? Information technology means creating, managing, storing and exchanging information. So जब हम IT की बात करते हैं तो IT stands for Information Technology. इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, उसे मैनेज करना, स्टोर करना एंड अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, ऑल दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. IT includes all type of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology. We all know that computer system is made up of two components like hardware and software. So IT includes all the types of technology that is used to deal with information. So what is information technology enabled services? Information technology that enables the business by improving the quality of service is information technology enabled services. बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम में सभी बिजनेसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ जो सर्विस की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके. इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. ITES इज ऑल्सो नोन एज वेब इनेबल्ड सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज that cover the entire operation. Information technology enabled services इसे हम web enabled services भी बोलते हैं and remote services भी बोलते हैं because हमारा जो entire operations हैं वो सारे के सारे क्या एक्सप्लॉइट करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके. So these services provide a wide range of career options. जो हमारी ITES है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करती है लाइक इन कॉल सेंटर्स, पेरोल, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रिवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटाबेसेस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, कंटेंट डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज एंड रिमोट ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज. सो इन सभी एरियाज़ में हमारा ITES यूज़ हो रहा है. ये बहुत सारे हमारे पास करियर ऑप्शंस भी हैं लाइक इन कॉल सेंटर्स हो गया, आपका बैक ऑफिस ऑपरेशंस में हो गया, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में हो गया, वेब सर्विसेज में हो गया एंड ह्यूमन रिसोर्स में हो गया. सो ये हमारी वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ITES इज डिफाइंड एज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोसेसेस that can be enabled with information technology and covers the diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing etc. So जो हमारा ITES है इससे क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोसेसेस है उसकी आउटसोर्सिंग हो पा रही है और वो कैसे हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से. और हमारा जो IT की हेल्प से जो हमारी एरियाज़ हैं वो हमारे जैसे कि फाइनेंस हो गया, HR हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये सभी के सभी हमारी जो है IT का यूज़ करते हैं.
So what are BPO services? BPO stands for business process outsourcing. BPO stands for business process outsourcing. These services means performing business operations through an outside service providers. मीन्स अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना किसी दूसरे आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर से, इसको हम बोलते हैं बीपीओ. ओके, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कराना आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर से नोन एज बीपीओ. So BPO also comes under IT services, as IT plays a very useful role in optimizing the business परफॉर्मेंस. जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो हमारे आईटी का यूज़ करते हैं, एंड आईटी सर्विसेज के अंडर ही हमारे बीपीओ आते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिकॉज जो हमारा आईटी है वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है बिजनेसेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. द बीपीओ इंडस्ट्रीज हाईली ऑर्गेनाइज. जो बीपीओ की इंडस्ट्रीज हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, एंड हैंस वेरियस काइंड ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स्ड इन इंडिया. क्योंकि जो हमारी बीपीओ की इंडस्ट्रीज है वो आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, इस वजह से बहुत सारे काइंड ऑफ जॉब्स जो हैं वो इंडिया के अंदर ही अवेलेबल हैं. बिजनेस So what are the various BPO services available? Like financial and accounting services, taxation and insurance services, e-publishing and web promotion, legal services and content writing, multimedia and design services, document management services, software testing services, healthcare services. So all these are BPO services, and the BPO services are comes under the IT, and they are using the services of information technology. So what is BPM industries in India? BPM. So what is BPM? BPM stands for Business Process Management. The IT BPM industries has been fueling India's growth. Because of IT, the industries are fueling India's growth also. In addition to contributing towards the country's gross domestic product, अगर हम कंट्री की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, जीडीपी की बात करें, तो हमारे आईटीबीएम इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया जो हमारा है उसकी इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, इनकम लेवल्स रेज होते हैं, एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स. और हमारा एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है. इट हैज़ प्लेस इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप. आज के टाइम में अगर हम इंडिया की बात करें तो वो वर्ल्ड मैप पर मेंशन आ रहा है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम टेक्नोलॉजी की वे में बात करें तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, एंड हमारे पास एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है. दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स amongst the largest investment by venture capitalized and has been credited with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country. So जो BPO सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में, उन्होंने अपने हार्डवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के वो यूज़ कर रहे हैं ताकि वो डिलीवर कर सकें बेस्ट ऑफ दी सर्विसेज. जो हमारे BPO सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में ताकि वो बेस्ट सर्विसेज डिलीवर कर सकें. दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू एंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज. वो फॉलो करते हैं कि वो एरर फ्री अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एनकरेजिंग द BPO इंडस्ट्रीज इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट. हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो भी एनकरेज कर रही है BPO इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में कि वो प्रोवाइड करें नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट. BPO इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया इज़ हाईली डेवलप्ड. जो BPO इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ BPO सर्विसेज. हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं BPO इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है और ये डिलीवर करती है न्यूमरस टाइप ऑफ BPO सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी.
सो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिसमें हमारी आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज जो है कैटेगराइज कर रखी है हमने, कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस्ड पर आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है सेक्टर दी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग। सेक्टर के बेस पे सबसे पहला हमारा पैरामीटर जो है सेक्टर है। सेकंड हमारा है टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। टाइप किस टाइप की वो हमारी है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो किस टाइप की है, एंड वो किस रेंज की ऑफर करती है, मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफर करती है। थर्ड हमारा है जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, कि उसकी कितना एरिया में वो स्प्रेड है। एंड रिवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस, जो हमारा ऑपरेशंस है उस पर कितना रिवेन्यू खर्च हो रहा है एंड कितना उसका साइज है। सो ये हमारे वो पैरामीटर है जिसके बेस्ड में आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट हो गया आपका सेक्टर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस सेक्टर में सर्व कर रही है। ओके, कि जो हमारा सेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा, लाइक आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है, ठीक है। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग दी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग दी, किस क्या टाइप है उसका और किस तरह की रेंज वो जो हम ऑफर करती है ऑर्गेनाइजेशन। जोग्राफिकल स्प्रेड हो गया आपका, और रिवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। सो स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी एंड बीपीएम इंडस्ट्रीज, इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा मल्टी नेशनल कंपनीज लाइक एमएनसी, आप इनको बोल सकते हैं। एमएनसी हमने सुना। सो फर्स्ट हमारा था मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया। जो एमएनसी कंपनी है उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, बट वो ऑपरेट करती है मल्टीपल लोकेशंस में वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। जो हमारी एमएनसी कंपनीज होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स तो आउटसाइड ऑफ इंडिया होते हैं, पर वो मल्टीपल लोकेशंस पर वर्ल्ड वाइड वो अपना जो है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, इस तरह से वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स की हेल्प से अपने वर्क को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसको हम आईएसपी बोलते हैं। आईएसपी स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। आईएसपी वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस जो है वो इंडिया में ही स्टार्ट किए हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, और इनके हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में ही है। और इंडिया की हमारे जो कंपनीज हैं वो उनके ऑफिसेज जो की अगर हम बात करें तो वो इंटरनेशनल लोकेशंस पे भी हैं। while most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have been focused on serving only the Indian clients। और बहुत सारे ऐसे भी ISP हैं जो सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को ही सर्व करते हैं, बट बहुत से ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है, बट उनके ऑफिसेज जो हैं अलग अलग वो इंटरनेशनल लोकेशंस पर भी बने हुए हैं। तो इस तरह से ग्लोबली भी वर्क करती हैं एंड डोमेस्टिक भी वर्क करते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। थर्ड हमारा है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जिसको हम बोलते हैं GIC। GIC ऑर्गेनाइजेशंस कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट। जो हमारे GIC है जिसको हम ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स भी बोलते हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी की नीड के लिए वर्क करती है, और इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल क्लाइंट्स होता है उनको GIC सर्व, जो हमारे GIC हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ये एक्सटर्नल क्लाइंट्स को सर्व नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।